What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 13th of August and today was the second Sensex expiry under this new CAS regime. कल हमने ये डिस्कस किए थे कि हमारा मार्केट्स में SLBM बहुत रिस्ट्रिक्टेड है एंड शॉर्ट सेलिंग इतना इजीली अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ विच सेलिंग साइड लिक्विडिटी इज नॉट very feasible especially during the auctioning time and because of which हमने कल तक देखे थे कि 8 कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो है ग्रीन कैंडल्स प्रिंट हुए थे ड्यूरिंग द CAS एंड टुडे वाज द 9th कंसेक्यूटिव कैंडल वेयर द मार्केट्स हैव कंसिस्टेंटली एंडेड हायर प्रिंटेड अ ग्रीन कैंडल ड्यूरिंग CAS एंड टुडे ड्यूरिंग द सेंसेक्स एक्सपायरी द फाइनल मिनट वॉलेटिलिटी ऑन द सेंसेक्स ऑप्शन वाज इनसेन. Just to give you context, the options which were trading at 300 rupees just a few minutes back ended at 20 rupees and the option which was trading at 20 rupees a few minutes back ended at 200 rupees because of the last minute change in the IEP, the indicative equilibrium price. And this again brings the question who this system is benefiting, and the more important question is what is the need of the 0DT contracts to resume trading during the auctioning, because डेरिवेटिव्स पे अगर हेजिंग किसी को करना है तो वो करेंगे अगले वीक का, अगले मंथ का, अगले क्वार्टर का कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके. 0DT कॉन्ट्रैक्ट्स पे कोई हेजिंग नहीं करेगा एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज आस्क ऑन सोशल मीडिया इज टू डीलिंक द 0DT कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द CAS. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज सेंसेक्स में ये जो प्राइस आया है, प्राइस डिस्कवर हुआ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ ऑफ कैश मार्केट वॉल्यूम्स. बट ये 150 करोड़ का कैश मार्केट वॉल्यूम से जो प्राइस निकल के आया है, इस प्राइस को यूज किए हैं टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ द नोशनल एक्सपोजर ऑफ मोर देन 1.5 लाख करोड़. मतलब एक बहुत ही लिक्विड मार्केट्स को सेटल किए जा रहा है यूजिंग अ वेरी थिनली लिक्विड ऑप्शन मार्केट्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स ऑफ मेनी ऑफ द ट्रेडर्स एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन द सोशल मीडिया एंड इवन ऑन द लेगेसी मीडिया outlets as well. Now the good thing is that the SEBI chief has come out and said that he is open to making some tweaks to the system. Time has to tell what kind of tweaks this system is going to see. But nonetheless, today's expiry was not that easy because 380 rupees पे straddle open हुआ and the markets moved 350 points lower and then again 350 points higher and consistently the markets were hovering somewhere around 77,800 levels up till the auctioning started. 315 के आसपास, 77,800 के आसपास markets था and the straddle was pricing in 100 point of move, but then the markets closed 280 points higher, creating huge losses for the people holding the short straddles. But of course, people who played 0-0 might have made money, but this is not the way to trade professionally and for a long-term sustainable trading is what the consensus in the market is. And today VIX has again got crushed by 2.5% and Nifty ka straddle is trading at a mere 205 rupees. Imagine Nifty is printing a minimum of 60, 70, 80 point candle during the CAS, but Nifty straddle is pricing in 200 rupees of risk, not only for Friday but for the overnight risk, for the Monday's price action and Tuesday's expiry price action. So I feel that trading short volatility or short gamma in this current regime is a fool's notion. So all that said, let's plan for tomorrow's Friday's market action. Let's get to the terminal. All right, you can notice this is the entire day's range and this is what the range of the last 5 minutes auction. So extremely volatile kind of auctioning here. तो मैं तो ये चीज़ को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ because फर्स्ट टिक पे you know generally जो स्टिंकी बिट्स बोलते हैं वो प्लेस हो जाता है, because of that the price might be showing some error, but this is a legitimate price. 77,700 से लेके 77,200 तक almost 500 points का एक मूव आया है just during the auctioning and इतना जो प्राइस मूव हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 150 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ कैश वॉल्यूम्स एंड इस वॉल्यूम्स के जो प्राइस निकल के आ रहा है दैट इज 78,079. इस प्राइस को यूज करके सेटल किए जा रहा है ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का नोशनल एक्सपोजर होने वाला सेंसेक्स के ऑप्शंस को. दैट इज व्हाट द बोन ऑफ कंटेंशन इज. And the second bone of contention, as I explained in the intro video, that what is the need of 0DT options to continue trading past 315, क्योंकि 315 के बाद जो hedge करने वाला है वो तो obviously
नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करके हेज करेंगे एंड 315 पे जो ट्रेड हो रहा है इट इज प्योरली गैम्बल, एक कैसीनो जैसे सिचुएशन बन गया है. दैट इज व्हाट द ट्रेडर्स आर आस्किंग टू, बिकॉज सोशल मीडिया में मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न इज एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट आर आस्किंग इज टू जस्ट डीलिंक द जीरो dt कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम CAS. मतलब लोग पूछ रहे हैं कि कम से कम जीरो dt कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दो, सेटल कर दो बेस्ड ऑन द 315 का रेफरेंस प्राइस एंड 315 के बाद ऑक्शनिंग जो है वो कंटिन्यूसली होते रहने दो, इज व्हाट द ट्रेडर्स आस्क इज. नाउ वेदर इट इज गोइंग टू गेट इंप्लीमेंटेड और नॉट, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. अगर स्ट्रैडल की बात करें, yes, today the straddle opened at 380 and for the first 15-20 minutes there was a linear crush and कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि straddle में erratic spike आया, because आप देखे होंगे कि like first week में 500 रुपीज़ से 700 रुपीज़ तक straddle में spike देखने को मिला था and निफ्टी में भी first expiry में 70 से 100 रुपीज़ तक straddle में spike देखने को मिला था, but the second nifty expiry was butter smooth. 140 रुपीज़ से continuously straddle डीके होते होते हुए linear डीके देते हुए almost 30 रुपीज़ पे पहुंचा था somewhere around 315. एंड आज सेंसेक्स का भी सिमिलर काइंड ऑफ अ बिहेवियर था, कहीं पे भी कुछ स्ट्रैडल में स्पाइक देखने को नहीं मिला. बट आफ्टर 1 o'clock यू कैन नोटिस लाइक हाउ स्टैग्नेंट और हाउ स्टिकी द स्ट्रैडल प्राइजेस वर. ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ से 150 आने के लिए ऑलमोस्ट 1-2 घंटे ले लिया एंड 110 रुपीज़ के आसपास जो स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 320 के आसपास एंड 100 रुपीज़ के स्ट्रैडल के बेसिस पे सेंसेक्स का मूव हुआ ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पे समवेयर अराउंड 77-800 के आसपास स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा था, आई मीन स्पॉट ट्रेड कर रहा था एंड वहां से जाके क्लोज हुआ है 78,080. दैट इज ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का एक अप मूव आया है ऑन द स्ट्रैडल प्राइस ऑफ 110. आई विल जस्ट शो यू गाइस द हाउ द premiums of 78,000 calls or even 77,800 calls behaved. Let me just go to the scalper mode and यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा. Let me choose Sensex here and you can notice that 78,000 call. You can notice in the last 5 minutes, in the just last 5 minutes, 2.6 rupees से almost 80 rupees. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द लास्ट 5 मिनट्स 220 रुपीज से 20 रुपीज. सो दिस इज द काइंड ऑफ मूव्स दैट वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ in a way opaque price discovery and also the price discovery that is happening on a relatively illiquid contract. I know थोड़ा बहुत रिपीटेटिव हो रहा है but it is very important to say this out multiple times at the cost of being redundant. So tomorrow again Nifty का 2DT है and as you can see here again Nifty almost 40 points का एक कैंडल प्रिंट किया है लास्ट में and you can notice so 205 रुपीज़ पे स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है. तो अगर कल आके कोई भी मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल करता है तो आई वुड ब्लेटेंटली कॉल हिम अ स्टूपिड पर्सन बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट. बिकॉज वीकेंड का भी रिस्क है, कल पूरा दिन का मार्केट मूवमेंट का रिस्क है, मंडे का मार्केट मूवमेंट का रिस्क है एंड ट्यूसडे का मार्केट मूवमेंट का रिस्क है. एंड कैन नोटिस दैट ये जो 60 पॉइंट्स तो रिजर्व है ऑलमोस्ट 3 o'clock के आसपास. मतलब with CAS running you can be sure that कम से कम 60 to 70 पॉइंट्स रहेगा ही रहेगा somewhere around 3 o'clock on the day of expiry. मतलब हमारे पास खाने के लिए कितना है 130 पॉइंट्स एंड इस 130 पॉइंट्स को भी अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो आज का ओवरनाइट डीके, ठीक है, आज का ओवरनाइट डीके, देन फ्राइडे का मार्केट एक्शन में जो आने वाला डीके वो एंड देन वीकेंड का डीके एंड देन मंडे का जो है वो 1DT का जनरली थोड़ा एक्सेलरेटेड डीके रहता है वो. तो आप सोच सकते हैं कि आपका हिस्सा कितना कम होने वाला है एंड मैक्सिमम है आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है. आपको करना है तो डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं वरना फ्राइडे अवॉइड करना ही मेरे हिसाब से बेहतर है, ठीक है. एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस how dirty the candles are looking and I was of the impression that सिर्फ 0DT traders ही है जो affect हो रहा है इस CAS के तौर पे, but there are other people who are trading positional who are constantly I've been seeing their tweets and who are saying that positional traders भी काफ़ी ज़्यादा affect हो रहा है because trend के against एक candle form हो रहा है and also आप notice कर रहे होंगे कि continuously 9 green candles during the CAS. तो एक काइंड ऑफ एक नोन पैटर्न भी बन जाता है इस चीज में एंड विच इज वेरी इजी टू एक्सप्लॉइट एज वेल. सो टुमारो कैसे ट्रेड करना है, यू कैन नोटिस दैट आज ऑलमोस्ट एक साइडवेज और मीन रिवर्टिंग काइंड ऑफ अ डे था. तो यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जनरली ऐसे ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करता, ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता भी है तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है. तो हमारे पास कुछ
कैप्चर करने के लिए ज़्यादा मूव्स नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करके यहाँ पे ब्रेक डाउन भी करता है, देन ऑल्सो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, यहाँ पे ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1:1 से ज़्यादा ट्रेड हमको नहीं मिलेंगे अगर हम लोग ब्रेकआउट या ट्रेंड फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रेड्स लेंगे तो। बट डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड्स। अगर मार्केट में कुछ बड़ा मूव आता है एक डायरेक्शन में, उस मूव होने के बाद हम लोग थोड़ा मूव को फेड करने वाले ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं। तो कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं? वन इज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डोंट डू एनीथिंग ऑन द अपसाइड। यहां पे हम लोग मीन रिवर्सन के लिए प्लान नहीं करेंगे, बट रादर इफ द मार्केट कम्स टू समवेयर अराउंड 250 लेवल्स, यहां पे हम लोग एक मीन रिवर्सन ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद जस्ट 50 पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस। जैसे मार्केट 24,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर जनरली क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए वर्टिकल स्प्रेड्स। हो सकता है कि बुल कॉल स्प्रेड हो, बुल पुट स्प्रेड हो, बेयर कॉल स्प्रेड हो, बेयर पुट स्प्रेड हो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू वांट टू ट्रेड डेबिट स्प्रेड्स और क्रेडिट स्प्रेड्स, बट वर्टिकल स्प्रेड्स ट्रेड करो सो दैट रिस्क डिफाइंड रहेगा। एंड अगर मार्केट आपके फेवर में आता है तो यू कैन इवन कॉन्फिडेंटली कैरी फॉरवर्ड टू द एक्सपायरी, क्योंकि वो जो ऑप्शन है पूरा, वो जो स्प्रेड को पूरा खाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। सो यहां पे क्या करेंगे? सिर्फ हम लोग यहाँ पे 250 के आसपास आता है मार्केट, दैट टू आफ्टर ट्रैवलिंग एटलीस्ट 100 पॉइंट्स। इंट्राडे में मैं चाहता हूं कि मार्केट 100 पॉइंट का इंट्राडे में मूवमेंट मिले, मतलब मार्केट हैज टू ओपन अबव 24,350 लेवल, मतलब 350 के आसपास ओपन होना चाहिए। और 100 पॉइंट्स अगर इंट्राडे में मूवमेंट आता है तो यहाँ पे मैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम या ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल, ऐसे ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है, तो इस पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा यूजिंग अ वर्टिकल स्प्रेड, ठीक है। नाउ शॉर्ट ट्रेड कहां पे इनिशिएट कर सकता हूं? शॉर्ट ट्रेड मैं इनिशिएट करूंगा समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, विच इज 24,570 लेवल्स। यस, सम पीपल माइट से दैट 24,500 भी राउंड नंबर है, यहां पे भी मैं इनिशिएट कर सकता हूं। बट अगर मार्केट 24,500 के आसपास आता है तो जनरली थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइक मारने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो आई वुड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू समवेयर अराउंड 24,560। तो जनरली मैं 560 तक तब वेट करूंगा अगर मार्केट मान लो 24,450 के आसपास ओपन हुआ, मतलब थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, एंड मैं वेट करूंगा कि कम से कम मार्केट 100 पॉइंट तो मूव देने दे, तो देन आई विल इनिशिएट अ रिवर्शन ट्रेड, मीन रिवर्शन ट्रेड समवेयर अराउंड 24,560 लेवल। बट लेट्स से मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, लेट्स से 24,350 के आसपास या 24,400 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, एंड देन मार्केट्स अगर 520 के आसपास भी आता है तो देन ऑल्सो आई विल इनिशिएट अ मीन रिवर्शन ट्रेड, बिकॉज ऑलमोस्ट 100 to 120 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मार्केट्स एक डायरेक्शन में मूव कर चुका रहता है, एंड देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ the steam kind of exhausting from that up move is very high। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं 560 570 तक मैं वेट नहीं करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मल्टीपल टच पॉइंट्स है, यहां पे एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस रीजन है, इस रीजन के आसपास मैं इनिशिएट कर सकता हूं इफ मार्केट ओपन्स विद इन टुडेज रेंज। बट अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप के साथ खुलता है, देन गैप अप होने के बाद में मैं 100 पॉइंट वेट करूंगा। दैट इज व्हाई आई विल बी इनिशिएटिंग सम 40 to 50 पॉइंट्स हायर देन दिस पर्टिकुलर 24,510 520 लेवल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बड़ा गैप अप होता है तो देन आई विल नॉट इनिशियली आई विल नॉट want to indulge in that particular price action, because ऐसे वीक सिनेरियो में एक बड़ा गैप अप जो है जनरली होना नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन ट्रेड करना मेरे हिसाब से इज नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड बेट। इनफैक्ट यहाँ पे मैं क्या वेट करूंगा? अगर बड़ा गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है एंड यहाँ पे जो लो है अगर मॉर्निंग सेशन में अगर ब्रीच हो जाता है, तो देन व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट वेट फॉर द मार्केट्स टू कम बैक इनसाइड दिस रेंज। जैसे मार्केट इस रेंज के अंदर वापस घुसेगा, देन आई कैन कॉन्फिडेंटली गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स। बट मान लो मार्केट्स ये ब्रेक डाउन भी किया और मार्केट्स मूव करने के लिए भी चालू किया, तो देन व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू दिस लेवल, पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 150 के आसपास में वेट करूंगा। 150 के आसपास में फिर से यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ। तो टुमारो आई वुड नॉट वांट to trade a breakout or a momentum kind of a trade, but rather I'd want to fade the moves for tomorrow, ठीक है। तो apart from that India VIX वापस 11.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है, and the premiums are also minuscule, and then we have this added risk of this blind CAS regime, so lot of changes, microstructural changes बहुत ज़्यादा है। तो in this situation it's better
to either trade with very minimum size or to wait for some extraordinary setups. तो जनरली क्या होना चाहिए, आपका जो सेटअप्स होना चाहिए ना, ग्रेड ए सेटअप, ग्रेड बी सेटअप, ग्रेड सी सेटअप जैसे होना चाहिए. तो जब आप प्रॉफिट में बैठे रहते हो, अच्छा खासा महीना चल रहा होता हो, एंड व्हेन यू नो द मार्केट्स आर इन योर सिंक, बेसिकली आप मार्केट के साथ बहुत ज्यादा सिंक है, तो मैं इवन आई वुड टेक अ ग्रेड बी काइंड ऑफ अ सेटअप. मतलब ये थोड़ा टीयर 2 काइंड ऑफ अ सेटअप है. बट अगर मुझे पता है कि लाइक मार्केट थोड़ा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, माइक्रो स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज आ रहा है, या मेरा महीना इतना अच्छा नहीं जा रहा है, और आई एम नॉट वेरी वेल इन सिंक विद द मार्केट्स, देन आईड ओनली वेट फॉर टीयर 1 और ग्रेड ए सेटअप्स. तो जनरली ग्रेड ए सेटअप्स क्या होता है, तो मैं वेट करूंगा मार्केट्स को थोड़ा ओवर एक्सटेंशन करने के लिए, उसके बाद ही मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए ट्राई करूंगा. बट अगर मुझे ग्रेड बी सेटअप ढूंढना है तो एज आई सेड, मैं यहां पे भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं, राइट. 480 के आसपास भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं, यहां पे भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ रेजिस्टेंस. बट बिकॉज द माइक्रो स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड एंड बिकॉज लाइक आई हैवंट ट्रेडेड फॉर दिस एंटायर कपल ऑफ वीक्स, तो मैं वेट करूंगा ग्रेड ए सेटअप के लिए. तो दैट इज वाई लाइक आई वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिफोर आई जंप इन एंड ट्राई टू फेड दैट पर्टिकुलर मूव. ठीक है, आई होप आज का एक्सपायरी आपका ठीक गया होगा, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका रिटर्न कैसा आया एंड how your MTM moved between 3 o'clock and 3:30, because I want to know, depending upon what kind of trade structures you used, आपका MTM कैसा मूव किया है. तो I definitely read the comments. Please let me know in the comments आपका एक्सपायरी कैसा रहा. बाकी I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.